Hello students, myself RK Mishra. This is the part 3rd video of sample paper revision. This is all about matter of class 12 subject biology, and in this video lecture we are going to discuss about the sample paper that you have recently appeared as an examination. The question paper, each question of the question paper was based on previous year question that was actually previously asked. So you need to focus each and every question and revise them thoroughly. If you have any problems from any questions, that you can frequently ask in the comment box. I will probably make the different video and separate video on your question papers. So you need to revise each question very concentrated manner, and without delay timing you need to focus each and every previously asked question. This is all about matter of class 12. Listen, and this sample paper we are going to discuss about the question number 18 onward, because in first question paper you need to, in first video lecture you have studied from question number 1 to 10. In second video lecture you have studied the question number 11 to 14. Listen, and 11 to 17. Listen, in third video lecture you are going to study about the 18 onward question paper. So without delay timing, let back over the question number 18 and revise them thoroughly. Listen, question number 1 to 10 was over in first video lecture. Question number 1 to 10 was over in first video lecture, and if you have any problem with any video lecture, then you can frequently ask in comment box. Actually, this is fourth video of revisional series. In first video the question number 1 to 10, in second video 11 to 14, in third video 15 to 17, and this is the fourth video in which you are going to study about question number 18 onward. So in previous video lecture the question number 1 to 14 was based on assertion and region, and then after you have studied the question number 15 to 17. The last video lecture was actually based on up to 17 question number. The question number 17 was only identification of A, B, C, D from the life cycle of AIDS. If you have any problem in that video lecture, that is, if you require the life cycle of AIDS or life cycle of HIV or application cycle of HIV, then you can frequently ask. I will also provide you the video link for the life cycle of HIV. That was actually separately made for me, for you, through me. Listen carefully. So without delay timing, let back over the question number 18. The question number 18 is, how sticky end formed on a DNA strand, why are they so called? कह रहा है कि स्टिकी इंड कैसे बनता है और इसको स्टिकी इंड क्यों बोला जाता है. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट वॉट एवर द एग्जैक्ट आंसर. लिसन, स्टिकी इंड फॉर्म ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियेज. लिसन, स्टिकी इंड कैसे बनता, तो लिखेंगे स्टिकी इंड फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सच एज EcoR first, because the EcoR first and other restriction endonuclease enzyme cuts the DNA strand slightly away from its palindromic sequence from its center. It do not cut from the border end, it cuts slightly away from the center. Suppose that this is the center of DNA, then it cuts slightly away from the center. That's why there is a need, there is the formation of sticky end occurs. Why they called sticky end? Because every fragments that is generated by the restriction endonuclease enzyme has free hydrogen bond, that able to bind with another strand having free hydrogen bond, so they called sticky end. Keep in mind, every fragments that created by EcoR first and related endonuclease enzyme has a free hydrogen bond. जितने भी आपके स्टिकी इंड क्रिएट होते हैं, जितने भी फ्रेगमेंट्स EcoR फर्स्ट या बाकी के एंडोन्यूक्लियस के थ्रू बनते हैं, उसमें फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही नया स्ट्रैंड आकर के इस पे जुड़ता है. इसी वजह से इसको स्टिकी इंड, स्टिकी मीन्स होता है चिपचिपा. यहाँ पे चिपचिपे का मतलब क्या होता है कि DNA का
स्ट्रैंड अगर फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है तभी उस पर नया डीएनए स्ट्रैंड जुड़ सकता है, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये डीएनए के दो पोर्शन में बना रहा हूँ, ये पोर्शन में दोनों साइड से डीएनए का स्ट्रैंड अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्टिकी इंड नहीं, यहाँ पे डीएनए का नया स्ट्रैंड नहीं जुड़ पाएगा। और ये कुछ इंड जो है खाली है जहाँ पे फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे नया डीएनए आकर के जुड़ जाएगा। दैट्स वाई देयर इज अ कॉल्ड स्टिकी इंड। तो उसको लिख लीजिए कॉपी में, बिकॉज ऑफ हैविंग स्टिकी इंड। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे आते हैं। व्हाट डज हाइंड एंड थर्ड रिफर टू द एंजाइम, रिफर टू इन द एंजाइम हाइंड थर्ड। कह रहा है हाइंड थर्ड में थर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना है। हाइंड जो थर्ड लिखा हुआ है इसमें इस थर्ड का क्या मतलब है और इस हाइंड का क्या मतलब है, दोनों चीज़ें जानना है। पहले तो हाइंड का मतलब समझते हैं। इसके सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, हाइंड थर्ड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एज यू ऑल नो, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो किसी न किसी प्रोकैरियोट से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया से। अब ये किस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ध्यान देना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से ये एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ जो वर्ड लिखते हैं उसमें पहले वर्ड का कोई मतलब होता है, यानी पहला जो वर्ड है हाइंड थर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बता रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला वर्ड जो है इसमें डी को छोड़ दें तो ये क्या है, एच से क्या है, एच द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स, the first letter of every restriction endonuclease enzyme, this represent the genus of the first letter of the genus, यानी ये जीनस है तो इसका पहला लेटर क्या है, एच। तो एच, listen, the hind means the inside the hind, the H refers the first letter of genus, while the second two letter of enzyme, the I and N, the second two letter refer the first two letter of species. This is the letter of species. So first two letter, the first two letter of species will be the second two letter in restriction endonuclease. So I and N, these two letter is actually used as the first two letter of the restriction endonuclease enzyme, and the second last letter, keep in mind, the second last letter in any restriction enzyme represent the strain from which the restriction endonuclease enzyme obtained. Strain means the type of source organisms, the name of source organisms. So strain is the strain of source organisms from which the restriction endonuclease enzyme was actually obtained. तो यहाँ पे कौन से स्ट्रेन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के कौन से स्ट्रेन से ये हाइंड थर्ड जो है ऑब्टेन किया गया था, उसका नाम था DSM 111121। ठीक है, 111121। ठीक है, तो ये DSM 111121 से ये ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, तो इसी में से डी का वर्ड इसमें यूज किया गया, तो यह क्या बन गया, इसका लास्ट लेटर, सेकेंड लास्ट लेटर। ठीक है, और ये क्या लास्ट लेटर जो रोमन डिजिट्स थर्ड, इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इट मीन्स द हाइंड थर्ड वॉज द third order of isolated enzymes. There are so many enzymes may be obtained before, there are two enzymes may be obtained from the hemophilus influenzae, and that was the third enzyme that was actually extracted, that was actually isolated from the hemophilus influenzae. So you don't mind whatever the third meaning, third is the Roman digits, that means the order of isolation, this means the order of isolation. So what does the hind and third means over here? The hind has the H, means the source, genus of source organisms, the species of source organisms, the strain of source organisms, and order of isolation. That is the hind third. Hind third is a type of restriction endonuclease enzyme. Next one is a bacterium Bacillus thuringiensis produce a toxic protein named cryprotein that is lethal to certain insect but not bacterium. कह रहा है कि एक बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis नाम का एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन, और वो लीथल होता है यानी कि जानलेवा होता है, किसके लिए, कुछ इंसेक्ट के लिए, लेकिन बैक्टीरिया के लिए नहीं होता है। ये तो अभी सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा नहीं। वाई दिस टॉक्सिन नॉट किल्ड द बैक्टीरियम, लिसन केयरफुली। अर्लियर द टॉक्सिन, द क्राई प्रोटीन, द टॉक्सिन ऑफ क्राई प्रोटीन remain inactive. Listen, earlier
it remain inactive, that is called as protoxin, that is called as protoxin. क्वेश्चन पेपर में भी ये चीज़ें दी हुई है, that is called as protoxin. And even if protoxin get contact with alkaline pH of gut system, alkaline pH of gut system of any animals, then it get activated and convert itself into cry protein. अब यहाँ पे ये बात अलग है कि ये एल्केलाइन पीएच बैक्टीरिया में नहीं होता है, बैक्टीरिया में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ना ही उसका गट सिस्टम है, इस वजह से इसमें एल्केलाइन पीएच अब्सेंस होता है और ये प्रोटोटॉक्सिन के ही फॉर्म में रहता है, ठीक है, यानी कि एक्टिव नहीं हो पाता है, दैट्स वाई इट डू नॉट किल टू द बैक्टीरिया। तो लिखेंगे कॉपी में, अर्लियर द क्राई प्रोटीन रिमेन इनएक्टिव, दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन एंड they do not harm to bacteria. Even if the protoxin get contact with alkaline pH of gut system, then it get activated and kill the respected animals in which they get activated. तो ये बातें अपनी कॉपी में आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है, देखो ये 2019 रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेज अकर्स इन द गट ऑफ इंसेक्ट दैट कंज्यूमिंग दिस प्रोटीन। लिखेंगे द इंसेक्ट that feed the that consume the protein inside the insect gut system, the protein or cry protein get activated with contact with alkaline pH, so that the degradation of insect or proliferation of that insect is gut system of that insect is to be done, and that is responsible for that of death of that insect. It means even when the cry protein get contact with alkaline pH, then it get activated and that responsible for degradation of the insect, ठीक है, इंसेक्ट गट सिस्टम। तो ये बातें अपनी कॉपी में आप एज यूजुअल टू द पॉइंट जैसा मैंने बताया था लिख लीजिएगा। व्हाट इज द आरएनए साइलेंसिंग, ध्यान देना, आरएनए साइलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म है आपके सिलेबस में आरएनए स्प्लाइसिंग, इसी से कुछ मिलता जुलता आरएनए साइलेंसिंग भी है। आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है, चैप्टर 12 में आपको पढ़ा होगा आपने, चैप्टर 12 में एक टर्म है, आपको बताया गया था कि एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, ठीक है, मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, लिसन, मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया इज अ टाइप ऑफ निमेटोड दैट इन्फेक्ट द रूट सिस्टम ऑफ टोबैको, रूट सिस्टम ऑफ टोबैको, ये रूट सिस्टम ऑफ टोबैको को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से टोबैको का ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन जो है घट जाता है। अब टोबैको के फार्मर्स जो है बहुत परेशान रहते हैं। साइंटिस्ट क्या किए, एक ऐसा एंजाइम ढूंढे, एक ऐसा डीएनए ढूंढे, ठीक है, जो क्या किया, एक ऐसा जीन ढूंढे जो जीन क्या करता है, ये मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया में जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद से, उसके छोटे छोटे पीस कर देता है। जैसे मान लो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए बना 5' to 3' इंड, ये अभी प्रोटीन सिंथेसिस के ट्रांसलेशन वाले इवेंट्स में पहुंचा, उससे पहले इसके छोटे छोटे पीस कट जाते हैं। इसके प्रोसेस क्या है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर इसका अवेलेबल होगा बहुत जल्दी, मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। दैट फिनोमिनन इज नोन एज आरएनए साइलेंसिंग और दैट इज आल्सो नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। सो लिखेंगे कॉपी में, डिग्रेडेशन ऑफ mRNA बिफोर ट्रांसलेशन इन मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया कॉल्ड एज आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस आल्सो। अब आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्ट्रेटजीज, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टोबैको प्लांट फ्रॉम मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, ध्यान देना है, मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया। तो ये मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया क्या होता है, एक तरह का निमेटोड जो टोबैको को इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसके बारे में समझना था तुमको, लिखना भी था कॉपी में। अब आते हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, द फिनोटिपिक, अब आगे लिखा हुआ है, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन आर सेम इन सर्टेन काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस, नेम द ऑर्गेनिजम्स इन विच इट अकर्स एंड मेंशन द काइंड ऑफ इनहेरिटेड इन्वॉल्व। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी इनहेरिटेड हैं जिसमें F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था आपको स्नैपड्रैगन में,
ठीक है। स्नैपड्रैगन के प्लांट में, स्नैपड्रैगन एक प्लांट है, स्नैपड्रैगन, ठीक है। इस स्नैपड्रैगन प्लांट में, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम मेजस, इसका जो फ्लावर होता है वो दो तरह का फ्लावर होता है, रेड और वाइट। ध्यान देना है, रेड और वाइट। रेड के लिए कैपिटल आर आर लिखते हैं जीनोटाइप, और वाइट के लिए स्मॉल आर आर लिखते हैं। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप बनता है, जिसका फिनोटाइप होता है पिंक। अब इस कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में जब आप सेल्फ क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर तीन जीनोटाइप फिर से मिल जाते हैं। और फिनोटाइप क्या मिलता है, ये जो है 1 और ये 2 और ये 1 के रेशियो में, यानी 1:2:1 के रेशियो में जीनोटाइप मिलता है। और फिनोटाइप ये रेड, ये पिंक और ये वाइट कलर मिलता है। यानी कि हमको ये जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है, सेम ये स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम मीजस में मिलता है। तो इसको हम कॉपी में लिखते हैं, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन आर सेम इन सर्टेन काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस। पूछ रहा है नेम द एन ऑर्गेनिजम्स इन विच इट अकर्स, तो लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स आर एंटीरिनम मेजस इन ब्रैकेट स्नैपड्रैगन। मेंशन द काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व, तो लिखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट फिनोमिनन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। I hope your concept regarding incomplete dominance is clear. If you have any problems regarding or related to incomplete dominance, then you can frequently ask me in comment box. I will probably resolve your problems with the video lecture. I will also provide you the link into the description box related to the incomplete dominance. So you need to write whatever the phenomenon and concepts of incomplete dominance from the chapter from the question number 21. From question number 22 onward I will revise the overall question. I will revise the this question paper from the next video. That video will be the video number 5. So let's back with the video number 5 in next video lecture, along with the question number 22. So with the help of in this video lecture you have learned the question number 18 to 21. it means outermost almost जो है done, ये ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया। 18, 19, 20 और 21। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। थैंक यू।